Hi students, welcome to Chaitanya Mathematics Academy classes. Now today intermediate second year maths 2A paper measures of dispersion, very long questions, very important long questions. Okay, measures of dispersion में से कौन सा explain कर रहे हैं अपन, long questions लिख दिए. Right, here the first question is find the mean deviation about mean for the following data. Okay, find the mean deviation about the mean के हेल्प से mean deviation find out करना, means first mean find out करना, so mean के हेल्प से we have to find out mean deviation. Okay, for the following data. xi means observations given is 2, 5, 7, 8, 10, 35. fi means frequency. Okay, frequency is 6, 8, 10, 6, 8, 2. Okay, so this is the problem. So we have to find the mean deviation. Okay, mean deviation about the mean. Okay, right. So first of all, the given the table is xi table. Xi value, what are the xi values? Xi values are 2, 5, 7, 8, 10 and 35. Okay, these are the observations. Okay, so observations are 2, 5, 7, 8, 10, 35. Okay, right. Next frequency means fi. So 6, 8, 10, 6, 8 and 2. ओके, सो क्वेश्चन में दिए सो ऑब्जर्वेशंस लिख दिए एंड आल्सो फ्रीक्वेंसीज भी लिख दिए. राइट, नेक्स्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट करना है. मीन फाइंड आउट करने को जनरल फार्मूला क्या है अपने को, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi. Okay, sigma fi xi by sigma fi. So fi into xi. So fi into xi. So fi into xi. Okay, fi into xi means fi value into xi value. So 6 into 2 12. Okay, and 8 into 5 40. Right, 10 into 7 70. Okay, 6 into 8 48. Okay, 8 into 10 80. Okay, 2 into 35 70. Okay, right. So this is the values of fi into xi. fi into xi. So fi into xi कहीं को लिख रहे अपन, मीन फाइंड आउट करना, बाद में जो मीन आंसर आता उसके हेल्प से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना. ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन्स we have to find out first of all mean, and with the help of mean value we have to find out mean deviation. To find out if observations given, if frequency given, if observations given and also frequency given, in that case to find out mean the formula is sigma fi xi by sigma fi. Okay, ऑब्जर्वेशंस दिए और फ्रीक्वेंसीज दिए, ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करने को फार्मूला सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi. ओके, fi इंटू xi कर दिए, सिग्मा जिसके सामने रहता वो लाइन को अपन ऐड करना. ओके, सिग्मा fi इंटू xi लाइन कंप्लीटेड. सिग्मा fi इंटू xi मीन्स we have to add fi xi values. Okay, then we can get sigma fi xi. Then fi already is there given in the question. Okay, sigma fi means we have to add the line. Okay, sigma जिसके सामने रहते हैं वो लाइन अपन टोटल नंबर्स ऐड करना है. fi इंटू xi के सामने सिग्मा है, सो fi xi ये है ना, सो ये लाइन को पूरा ऐड करे तो वो वैल्यू आता सिग्मा fi. सो fi को सामने सिग्मा है, fi को टोटल ऐड करे तो अपने को सिग्मा fi आता है. राइट, सो वो फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ओके xi मीन फाइंड आउट करने के अपने को जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज आ गया, तो उसके बाद अपन मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है. मीन डेविएशन फाइंड आउट करने को मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है ना, फर्स्ट तो ये तो अपन सिंप्लीफाई कर देंगे. राइट, सो xi fi एंड सो xi लाइन में सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं क्लियरली समझ में आने के लिए.
and fi line separate कर रो, okay, then fi into xi also separation completed, right? After then we need xi minus xi minus x bar, modulus of xi minus x bar, and then mod of fi into xi, ओके, इसका वैल्यू लिखना है ना अपन, इसका वैल्यू लिखना बोले तो थोड़ा बॉक्स सेपरेट ज़्यादा करेंगे अपन, ओके, ये थोड़ा अपन बॉक्स क्या करेंगे, सेपरेट ज़्यादा कर लेंगे, ओके, क्लियर, राइट, ओके, राइट। सो xi माइनस x बार वैल्यू होना, वो वैल्यू होने के लिए अपने को क्या होना, थोड़ा सेपरेट लाइन अपन कर देंगे, ओके। So xi minus x bar, clear, and fi into mod xi minus x bar, okay. So this one अपने को होना क्या है, ये वैल्यूज होना है पूरा, क्लियर, राइट। सो जो वैल्यूज होना वो वैल्यूज अपन ड्रा कर लिए, ओके, टेबल लाइन ड्रा कर दिए। फर्स्ट xi गिवन ऑब्जर्वेशंस, fi गिवन फ्रीक्वेंसी, fi into xi टू फाइंड आउट मीन, मीन के साथ, मीन के हेल्प से मीन डिविएशन फाइंड आउट करना है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ मीन वी हैव टू फाइंड आउट मीन डिविएशन, टू फाइंड आउट मीन वी नीड fi into xi, so fi into xi completed, okay. Next to find out mean deviation we need modulus of xi minus x bar and fi into mod xi minus x bar, right? So first of all we have to find out x bar means mean, okay. First of all we have to find out mean, okay. Clear, right, right. So we need sigma fi, right? Sigma fi can be taken as capital En also. सिग्मा fi को अपन क्या लेते हैं, कैपिटल En भी ले सकते हैं। सो इसका आंसर कितना आता है अपने अपन एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। 2 प्लस 8 10, ओके, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, ओके। टोटल fi लाइन को ऐड करें, fi के सामने अपने को फार्मूला में सिग्मा है, इसलिए fi लाइन जो रहता उसको ऐड करें तो आंसर कितना आया, 40 आया, उसको बाजू में लिखेंगे। देन अगेन वी नीड सिग्मा fi इंटू xi, fi इंटू xi, fi इंटू xi के सामने सिग्मा है अपने को फार्मूला में, वो सिग्मा बोले तो ये सम ऑफ, सिग्मा मीन सम, ये लाइन टोटल करना है। यूनिट प्लेस देखो एक बार, 0 8 8 प्लस 2 10, यूनिट प्लेसेस ऐड करें अपन, 10 आया, 1 कैरी, ओके। 0 प्लस 8 8 प्लस 2 10, क्लियर, ओके, राइट, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 1 32, राइट। एक बार और एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बिकॉज छोटा भी सिंपल मिस्टेक गया ना अपने को प्लस माइनस में या टोटल में, सम में भी मिस्टेक गया ना, टोटल प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है, राइट। सो ये प्रॉब्लम्स मेथड कुछ भी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी मेथड, बट सिंप्लीफिकेशन इज वेरी टफ, ओके। सिंप्लीफिकेशन टफ कहीं को बोल रहे बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा इधर उधर भी गया ना, टोटल प्रॉब्लम रॉन्ग चले जाता, ओके। 0 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 6, सॉरी 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 1 32, राइट। सो इसका वैल्यू भी आ गया। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मीन, ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मीन। मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, मीन किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ये टोटल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टोटल चैप्टर में मीन फाइंड आउट करना है, बोले तो क्या फाइंड आउट करना, एक्स बार फाइंड आउट करना है, ओके। सो मीन फार्मूला इज सिग्मा fi xi बाय
sigma fi. Okay, so summation of fi xi by summation of fi. Okay, so numerator answer, what is the numerator answer? Sigma fi xi means 320. Okay, so x bar equals to 320 by sigma fi value 40. Okay, clear? So 0 0 cancel, 4 ones are 4 8. Okay, so now we have the mean value is, mean x bar equals to, the value is 8. Okay, so mean value is, mean x bar equals to, we have 8. Clear? Right. So with the help of mean we have to find out mean deviation. यहाँ पे mean दिए इसलिए mean find out कर रहे हैं. Listen carefully. About mean बोल के दिए तो mean find out कर रहे हैं. About median दिए तो median find out करने के बाद mean deviation find out करना है. Clear? Okay, right. So mean complete. X bar is 8. So see, xi means 2. Listen carefully. xi means 2. Okay, so 2 minus x bar means 8. Okay, right, this one completed. Same 5 minus x bar, right? Next 7 minus 8. नेक्स्ट 8. यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे फिंगर लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे 8, राइट? 8 माइनस 8. नेक्स्ट वन 10 minus 8. Okay, next one 35 minus 8. Clear? Okay, 35 minus 8. See, xi means modulus of first value is xi, so that's why 2, then 5, because of these are xi values. 7 8 10 35. Clear? Then minus, okay, x bar. What is the x bar value? 8. That's why total x bar value 8. This is not 81, this is 8. Okay, so 2 minus 8, actual minus 6. Okay, 2 minus 8 means minus 6, but modulus is there means plus 6. क्लियर? मॉडुलस में माइनस रहा तो भी अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. ओके, मॉडुलस में माइनस रहा तो भी अपन प्लस वैल्यू लेते हैं. मॉड ऑफ नेगेटिव टर्म मीन्स वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू. ओके, मॉड ऑफ 2 minus 8 means minus 6. मॉडुलस ऑफ minus 6 means plus 6. ओके, 5 minus 8 minus 3 एक्चुअली, बट मॉड में minus 3 रहा तो अपन प्लस 3 लेते हैं. 7 minus 8 minus 1, but modulus means plus 1. 8 minus 8 0. Okay, 10 minus 8 2. Okay, next to 25 minus 8, sorry, 35 minus 8 27. Clear? Okay, right? 2 minus 8 minus 6, but modulus में minus 6 means plus 6. 5 minus 8 minus 3, but modulus of minus 3 means plus 3. Modulus of 7 minus 8 means modulus of minus 1, but plus 1 modulus. 8 minus 8 0, 10 minus 8 2, 35 minus 8 27. See, fi into xi minus x bar, right? Fi means this one. Okay, fi means this one. xi minus x bar means this one. Clear? ये दो लाइन्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट? fi into mod xi minus x bar means fi line. This one is fi line and this one is xi minus x bar. Okay, so 6 into 6 36. Okay, and 8 into 3 24. Clear? Next 10 into 1 10. Next 6 into 0 0. Next 8 into 2 16. Okay, next 2 into 27 54. Clear? 2 7s are 14, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1. Clear? Okay, see once again, fi into xi minus x bar, 6 into 6 36, 8 into 3 24, 10 into 1 10, 6 into 0 0, 8 into 2 16 and 2 into 27 54. See, right? So we need, so फार्मूला नहीं लिखा, बट फार्मूला में ये रहता, इसके सामने सिग्मा रहता बिकॉज ऑफ मीन डिविएशन फार्मूला, राइट? सो इसके सामने सिग्मा रहता है, इसको सिग्मा करेंगे, राइट?
4 प्लस 6 फर्स्ट यूनिट प्लेस ऐड करेंगे. ओके, सो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 20, राइट, 2 कैरी. सो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 plus 2 11, 11 plus 3 14. Okay, see once again, 4 plus 6 10, 14 20, 2 carry, 2 plus 5 7 plus 1 8, 9 plus 2 11 plus 3 14. So total is 140. Okay, now mean deviation. Now mean deviation equals to 1 by capital N into sigma Fi into xi minus x bar. This is the formula. Okay, mean deviation का formula 1 by capital N. What is the capital N value? Sigma Fi also can be taken as capital N. So capital N value 40. So 40 into sigma Fi into xi minus x bar. What is the value? 140. Okay, right. Okay, 0 0 cancel, 2 2s are 2 7s are. Okay, right, 7 into 1 7 by 2. क्लियर, 7 by 2 means डिवाइड करें तो कितने आता 3.5. ओके, 7 को डिवाइड करें तो कितने आता 3.5 आता, 2 3 6. ओके, 1.1 नहीं जाता ना, इसलिए पॉइंट लगा के 0, 2 5 10. क्लियर. ओके, सो 7 by 2 डिवाइड करें तो कितने आ रहे अपने को 3.5. दिस इज द मीन डिविएशन अबाउट द मीन. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out mean value, then with the help of mean value we have to find out mean deviation. Okay, very important, mean deviation, we have to find out mean deviation about the mean. The method, which is the method mean deviation about the mean method is very important, 99% repeated method, right? So ये मेथड में 4 प्रॉब्लम्स है अपने को, गन शॉट क्वेश्चंस 4 प्रॉब्लम्स है. ये वाला ऑब्जर्वेशंस दिए जब प्रॉब्लम है और क्लास इंटरवल दिए जब रिमेनिंग 2 और 3 प्रॉब्लम्स है. सेम मीन डिविएशन अबाउट द मीन, प्रोसेस इज द सेम. मीन फाइंड आउट करना, बाद में मीन डिविएशन फाइंड आउट करना. मीन डिविएशन का फार्मूला चेंज नहीं होता, बट मीन का फार्मूला चेंज होता, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस दिए तो अलग फार्मूला है, क्लास इंटरवल दिए तो मीन फाइंड आउट करने का अलग मेथड है. जस्ट मीन फाइंड आउट करने का डिफरेंट वे से, बट मीन डिविएशन फाइंड आउट करने को एक ही फार्मूला है. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मीन डिविएशन अबाउट द मीन. ओके, राइट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज second problem, again same but with the class interval. Okay, right. Next one, second problem. Okay, next the second problem is find the mean deviation. Find the mean deviation. Find the mean deviation. Mean deviation about the mean. Find the mean deviation about the mean for the following data. For the following data. For the following data. Find the mean deviation about the mean for the following data. Same as it is previous problem. Height in centimeters. Height in centimeters. Okay, height in centimeters. Okay, height centimeters में दिए, और next number of boys. Okay, right. So the numbers are 95 to 105, 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125. Okay, 125 to 135 and 135 to 145 and next to 145 to 155. Clear? Okay, next 9, 13, 26, 30, 12 and 10. Okay, 9, 13, 26,
30, 12, 10. This is the problem of mean deviation about the mean. Mean deviation about the mean. Okay, right. Now the solution of the second problem. Okay, so यहाँ पे 30 अंदर ले लेंगे. Right. Okay, right. Same process. Okay, solution. Now the class interval. Okay, solution. So ऐसे दिए तो class interval बोलते हैं इसको, ऐसे 95 to 1, 1 to 10, 10 to 20. This is called a class interval. Okay, 1 to 10 divide करके दिए group. Sum of 1 to 10 is the one group, 10 to 10 is the one group, 20 to 10 to 20 is a one group, 20 to 30 is a group. In previous problem the observations is given single numbers. Xi means observation 2, 5, 7, 8, 10, 35. Observations means the formula to find out the given observations mean is some sigma fi xi by sigma xi. Okay, right. Now this one is same problem, mean deviation about the mean. This one also mean deviation about the mean. Question is same but data is different. Okay, in this frequency is given, number of boys also, in this number of boys also means frequency, but xi means observations given, in this class interval is given. Okay, 95 to 105 it is a one group, and 105 to 115 it is a one group, and 115 to 125 it is a one group. Groups divided means it can be taken as class interval. ऐसे divide करके दिए तो इसको क्या लेते हैं अपन, class interval लेते हैं. Okay, right. So class interval first one clear. Next same as it is process xi fi. Okay, little bit different. To mean find out करने का solution अलग है. So इसमें ये slide दिख रहा थी last में, right. इसमें right अब दिख रहा ना slide total, right. Okay, इसमें class interval, right. Now class interval is 95 to 105. Okay, next 105 to 115, next 115 to 125. Okay, next 125 to 135, next 135 to 145, next 145 to 155. Okay, these are the given class intervals. Okay, so class intervals completed, right. Let okay, so class interval completed. So this is class interval. Okay, next number of boys can be taken as frequency. Okay, number of boys can be taken as frequency. Okay, so what are the frequencies? 95 to 105 means first one is 9, next 13, next 26, next 30, next value is 12, and next one is 10. Okay, so given data completed. Okay, जो क्वेश्चन में दिए वो as it is लिख दिया, but हाइट इन सेंटीमीटर को क्या लिया मैं, क्लास इंटरवल बिल को दिया. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर हाइट इन सेंटीमीटर लिख के नीचे CI भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट. सो डायरेक्ट मैं क्लास इंटरवल ही लिया, राइट. बट क्या करना चाहिए अपन, हाइट इन सेंटीमीटर बोल के लिख के नीचे क्लास इंटरवल, CI मीन्स क्लास इंटरवल. ओके, नंबर ऑफ बॉयज लिख के उसमें फ्रीक्वेंसी FI बोल के लिख लेना, राइट. नेक्स्ट वन, ओके, क्लास इंटरवल कंप्लीटेड, FI कंप्लीटेड, XI. See, in previous problem xi direct given, in previous problem xi direct given, but actual xi means xi कैसे find out करना, अगर नहीं दिए तो xi कैसे find out करना. So separate question में xi दिए तो उसको observation बोलते हैं, अगर नहीं दिए तो अपन xi find out करना उसको क्या बोलते हैं, mid point. क्या बोलते हैं अपन उसको, mid point बोलते हैं. Mid point can be taken as midpoint can be taken as xi. Okay, MP midpoint. Okay, midpoint को क्या ले रहे हैं अपन, xi ले रहे हैं. ओ xi कैसे फाइंड आउट करता, मैं अभी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ. xi. ओके, xi मीन्स फर्स्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, लोअर लिमिट बोलते हैं. लोअर लिमिट, अपर लिमिट. लोअर वैल्यू इज 95 प्लस अपर वैल्यू 105/2. कंफ्यूज नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं है, आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं. लिसन केयरफुली एंड प्रैक्टिस वेल. ओके, सो फर्स्ट वैल्यू
प्लस सेकंड वैल्यू बाई 2। ओके, ये 95 टू 105 है, 95 माइनस नहीं होता, 95 टू 105। ओके, दो वैल्यूज ऐड करें। ओके, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 सॉरी 95 प्लस 5 100, 95 प्लस 5 100, राइट, 100 प्लस 100 200, 200 बाई 2। 95 को 105 ऐड करें तो कितना हो रहा, 200 हो रहा। 200 मीन्स 2 से डिवाइड करो, 2 1 0 0, कितने आया आंसर इसका, 0 आया। हर एक ऐसे ही करना पड़ता, राइट। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, ये दो नंबर्स को ऐड करके बाई 2 करके कितने आता आंसर, वो आंसर यहाँ पे लिखना। सेम sum of two terms divide 2, then write here answer. Sum of two answers, then divide 2, write here value. Sum of two answers divide by 2, sum of two answers sum of two values divide by 2, sum of two values divide by 2। फिर ऐसे करते जाना, वो तो टाइम तो पूरा चले जाता, राइट। सो टाइम वेस्ट नहीं होना बोले तो क्या करना, फर्स्ट वैल्यू कंपलसरी करना। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू बाई 2 करके आंसर जितना है वो आंसर लिख दिए। अपन डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट कैसे करना है एक बार एक्सप्लेन कर दे तो आपको मैं, राइट। सो फर्स्ट वैल्यू होगा 105 माइनस 95, 105 माइनस 95 कितने है, 10 है। 115 माइनस 105 10, 125 माइनस 115 10, 135 माइनस 125 10, 145 माइनस 135 10, 155 माइनस 145 10, मीन्स डिफरेंस कितना है, 10 है। वो 10 इसको ऐड करते जाना। 100 होगा प्लस 10 मीन्स 110, प्लस 10 मीन्स 120, प्लस 10 मीन्स 130, प्लस 10 मीन्स 140, प्लस 10 मीन्स 150। एक बार चेक करेंगे, राइट, एक बार एक नंबर चेक, ये नंबर चेक करेंगे। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू बाई 2, राइट। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2 बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 0 जा, क्लियर, 130। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू ऐड करना, डिवाइड 2 करना, 2 करने के बाद एक नंबर आता ना, वो नंबर को क्या करना, इसका डिफरेंस कितना है, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस मालूम करके हर एक नंबर को ऐड करते जाना। डिफरेंस इज 10 10 10 ऐड करते गए, राइट, क्लियर, राइट। एक्सआई वैल्यू फाइंड आउट करना बोल तो क्या करना, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू ऐड करना और बाई 2 करके आंसर जो आता है वो आंसर लिख देना। बाद में क्या करना, ये दो डिफरेंस है, इसमें से ये नंबर माइनस करे तो कितना होता है, 10 डिफरेंस है, हर एक के बीच में 10 डिफरेंस है, वो 10 10 ऐड करते गए। 100 प्लस 10 110, 110 प्लस 10 120, 120 प्लस 10 130, प्लस 10 140, प्लस 10 150, क्लियर, राइट। नेक्स्ट इसके सामने एक DI लिखेंगे, करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, राइट। सो DI वैल्यू, DI वैल्यू बोले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, ये जो फ्रीक्वेंसी बोले तो FI के लाइन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 है, राइट। सो 30 के सामने जो मिड पॉइंट है इसको क्या लेते हैं अपन, A लेते, स्मॉल a, क्या लेते, स्मॉल a। कौन सा वैल्यू को लेते, स्मॉल a, सर लिसन, FI में फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 30 बड़ा नंबर है, ओके। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मिड पॉइंट के लाइन में जो नंबर रहता वो नंबर को स्मॉल a लेना, राइट। सो स्मॉल a लेके इसके सामने क्या करना, अपन 0 लिखना, ऊपर 1 2 3 कंटिन्यूएशन नंबर्स, नीचे 1 2 3 कंटिन्यूएशन नंबर्स। ऊपर 3 आया बट नीचे 2 आया, वैसे आ सकते हैं, टेंशन नहीं है, बट क्या है बोले तो अपने को ऊपर ज्यादा नंबर से नीचे कम नंबर से, क्लियर। सर अपर अगर सपोज यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आया तो ये 0 होता, ऊपर 1 2 3 बट लिसन, 0 के नीचे पॉजिटिव वैल्यूज, 0 के ऊपर माइनस वैल्यूज, क्लियर। 0 के नीचे प्लस वैल्यूज, 0 के ऊपर माइनस वैल्यूज है, ओके, राइट। सो DI कंप्लीट होगा, ओके। राइट, नेक्स्ट फार्मूला क्या है बोलते, एक्चुअल फार्मूला सेम वही छे, फार्मूला क्या है अपने को सेम वही फार्मूला है, ओके। सो DI वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, राइट। नेक्स्ट FI इंटू DI, नेक्स्ट वन इज FI इंटू DI,
ओके, एफ आई इंटू डी आई। और एक बार बाद में थोड़ा एरेज करना पड़ता, इसको क्या होगा तो प्लेस राइट। ओके, इसका ओके राइट, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा नहीं, थोड़ा ये एरेज करा था, क्या बोलता अपने को और 3 बॉक्सेस होना था, इसको डी आई को पकड़ के एफ आई इंटू डी आई एक्स आई एफ आई, ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। और यहाँ पे डी आई का डी आई इक्वल्स टू क्या है बोले तो फार्मूला एक्स आई माइनस ए बाई एच, ऐसे भी कर सकते, विथ फार्मूला भी कर सकते। डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, डायरेक्ट भी कर सकते, मैं डायरेक्ट प्रोसेस बताया, फार्मूला के साथ भी कर सकते। ओके राइट, सो फार्मूला के साथ कैसे करेंगे एक बार देखें। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 30, 30 के सामने जो एक्स आई मिड पॉइंट में जो वैल्यू रहता है उसको ए लेना। एक बार कौन सा ये नंबर देख के चेक करेंगे ये आ रहा कि नहीं की, राइट। मैं तो डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट कैसे लिखना, ये फार्मूला की भी जरूरत नहीं, बट फार्मूला आप लोगों को याद रहना बोल के, फार्मूला मालूम होना बोल के मैं फार्मूला बोल रहा हूँ। एक बार देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है, इसके सामने मिड पॉइंट को ए लिए, इसके सामने डी आई में लाइन में क्या लिखना 0 लिखना, ऊपर 1। प्रॉब्लम कौन सा भी हो तो ये वैल्यूज प्रॉब्लम कुछ भी रहने दो, डी आई वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, नीचे 1 2, ऊपर 1 2 3, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, नीचे +1 +2 +3 +4, राइट। सो प्रॉब्लम कुछ भी रहने दो, डाटा कुछ भी रहने दो, डी आई लाइन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने डी आई लाइन में 0 लिखना, नीचे प्लस वैल्यूज कंटिन्यू वैल्यूज, ऊपर माइनस वैल्यूज, यही नंबर्स 1 2 3 1 2 3, राइट। फिर भी एक बार चेक करेंगे, फार्मूला के साथ चेक करेंगे, ये आने के लिए चेक करेंगे डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। ओके, व्हाट इज एक्स आई वैल्यू, एक्स आई वैल्यू 100, ओके, माइनस ए वैल्यू व्हाट इज ए वैल्यू 130 बाई एच, एच मीन्स हाइट, मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है डिफरेंस, 105 माइनस 90 कितना हो रहा 10, वो 10 को क्या बोलते हैं अपन एच बोलते हैं 10। 100 माइनस 130 मीन्स -30 बाई 10, ओके, 0 0 कैंसल, -3 बाई 1 मीन्स -3। हर एक को सेम वही चाहता, ये 100 में निकाल दो, ये नंबर चेक करेंगे, एक्स आई क्या है, सॉरी एक्स आई क्या है 150 लिख दिए, चलो 150 माइनस 130 कितने हो रहा +20 हो रहा, 0 0 कैंसिल होते कितना आता +2 आता। क्लियर, ओके। सो फार्मूला के साथ भी कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते, ओके राइट। सो ये तो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पे लिखो, राइट। नेक्स्ट एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पे ये लिखो। क्लियर, ये लाइन थोड़ा अपन सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा लाइन्स इधर उधर जा रहा, क्रॉस जा रहा, बुरा मत मानो, ओके। जैसे आ रहा मैं वैसे लाइन्स ड्रा करते जा रहा हूँ। क्लियर, ओके। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार मीन्स मीन, एक्स बार बोले तो क्या है मीन। सो मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करने को यहाँ पे जगह नहीं है ना, नेक्स्ट स्लाइड में मीन फाइंड आउट करके बाद में इधर आएंगे, राइट। ओके, मीन बाद में मीन फाइंड आउट करके नेक्स्ट ये, ओके। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे अपन एक चीज़ भूल गए थे, एक्स बार फाइंड आउट करना बोले तो अपने को मीन फाइंड आउट करने को एफ आई इंटू डी आई का ज़रूरत पड़ता। मैं फार्मूला बताता आपको, एक्स बार इक्वल टू फार्मूला क्या बोले तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला है, राइट। ये फार्मूला बाद में नीट लिख के एक्सप्लेन कर दो, एफ आई डी आई होना एफ आई होना, सिग्मा एफ आई कैन बी टेकन एज कैपिटल एन आल्सो, ओके, सिग्मा एफ आई कैन बी टेकन एज n also capital N, okay, 0 plus 2 2 2 plus 6 8 8 plus 3 11 11 plus 9 20, okay, 2 carry 2 plus 1 3 3 plus 1 4 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10, total is frequency 100, okay, 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 7 plus 9 plus 10, okay, total
100. ओके एफ आई, अच्छा ये लिख दिए, ये एक लाइन ड्रा करना बोल के लिख दिया था मैं, निकाल दिया था, राइट. ओके क्लियर. एफ आई इंटू डी आई, एफ आई लाइन ये है और डी आई लाइन ये, कंफ्यूज नहीं होना. एफ आई लाइन ये है और डी आई लाइन ये दो इंटू करना, राइट. 9 इंटू -3 -27. ओके 13 इंटू -2 -26. नेक्स्ट 26 इंटू -1 -26. ओके 30 इंटू 0 0. 12 इंटू 1 12. ओके 10 into 2 20. Clear? Listen carefully. Fi line into Di line. 9 into -3 -27. 13 into -2 -26. 26 into -1 -26. 30 into 0 0. 12 into 1 12. 10 into 2 20. ओके Fi Di को सम करना है, फॉर्मूला में है सिग्मा Fi Di. Fi Di वैल्यू, ओके 2 + 6 8, सॉरी ये माइनस वैल्यू सही ना, माइनस वैल्यू सेपरेट कर देंगे. एक बार देखो 27 -26 -26 यानी ये ऐड करेंगे, 6 + 6 12, 12 + 7 19. ओके 1 6 + 1 7 -79 है, राइट. यहाँ पे +32 है, राइट, +32. ओके 9 - 2 7 7 - 3 4. क्लियर. माइनस बड़ा नंबर को माइनस है ना, तो आंसर कितना आता -47. माइनस वैल्यूज है ना, माइनस वैल्यूज को तीन वैल्यूज को ऐड कर लिया. 7 + 6 13 + 6 19. 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7. माइनस पूरे को माइनस है ना, सो -79. ये तीन वैल्यूज ऐड करें तो -79 आया. प्लस वैल्यूज कितने अपने को 12 + 20 कितना है 32 + 32. 79 प्लस था -79 + 32. एक प्लस एक माइनस बोले तो माइनस करना, राइट. सो 9 - 2 7 7 - 3 4. बट बड़ा नंबर को क्या अपने को माइनस है, तो आंसर क्या आता -47. 47 आता. बट हाईएस्ट नंबर क्या है, उसका साइन क्या है, वो साइन अपने को आंसर में आता, राइट, -47. ओके नाउ अपन मीन फाइंड आउट करना पड़ता. मीन फाइंड आउट करने के लिए ए वैल्यू 130 है, सिग्मा Fi Di वैल्यू -47 है, सिग्मा Fi वैल्यू 100 है, इंटू एच बोले तो डिफरेंस है, राइट. वो नेक्स्ट स्लाइड में लिख दो, थोड़ा कैमरा सेट कर दे तुम्हें. ओके राइट. नेक्स्ट ए वैल्यू. सो फर्स्ट ए वैल्यू कितना है अपने को, ए वैल्यू 130 आया. ओके नेक्स्ट सिग्मा Fi वैल्यू कितना आया 100 आया. ओके ये लिख दिया. नेक्स्ट सिग्मा Fi Di वैल्यू कितना आया अपने को, Fi Di वैल्यू बोले तो अपने को -47 आया. ओके -47. नेक्स्ट H बोले तो डिफरेंस कितना है अपने को 10 है, राइट. सो मीन फार्मूला, क्लास इंटरवल दिए तो मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला अलग है, a + सिग्मा Fi Di बाई सिग्मा Fi इंटू H. ये मीन, इससे पहले मीन क्या लिखा अपन, x बार इक्वल टू सिग्मा Fi इंटू xi बाई सिग्मा Fi. ओनली ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसी दिए तो ये फार्मूला है. बट इसमें ऑब्जर्वेशंस के जगह पे क्या दिए, क्लास इंटरवल दिए. इफ क्लास इंटरवल इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी गिवन, देन द फार्मूला ऑफ मीन x बार इक्वल्स टू a + सिग्मा Fi Di बाई सिग्मा Fi इंटू H है फार्मूला, राइट. सो ये फार्मूला है अपने को इंटू H. ओके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज द ए बार वैल्यू, ए वैल्यू 130. क्लियर. एंड प्लस सिग्मा Fi Di वैल्यू, व्हाट इज द सिग्मा Fi Di -47. व्हाट इज सिग्मा Fi वैल्यू 100. ओके इंटू H, व्हाट इज द H वैल्यू 10. ओके सो 0 0 कैंसल. 130 प्लस इंटू माइनस -47/10. 47/10 बोले तो डिनोमिनेटर में 10 है ना, मीन्स 1 0 है, मीन्स राइट साइड से 1 पॉइंट लगा दो, डायरेक्ट डिविजिबल, राइट. सपोज 287 है बाई 100 है, तो 2 0 से लास्ट से 2 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगाओ. 2 zeros आफ्टर फ्रॉम राइट साइड आफ्टर 2 पॉइंट्स. 1287/1000 है, 3 0 से राइट साइड से 3 नंबर छोड़ दो, 1 2 3 देन पॉइंट.
क्लियर? ओके, दीज आर द डेसिमल प्रोसेस. ओके, वेरी इजी. डिनोमिनेटर में जीरोस रहा तो वेरी इजी. जीरोस मीन्स 10, 100, 1000, 10,000 लाइक दिस. ओके, सो 130 में से 4.7 माइनस कर दो. 130 में से 130 मीन्स 130.0, 4.7 डेसिमल के जगह पे डेसिमल इज, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही ना, पॉइंट के बाद 130 को 130.0 के लिखे अपन, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है इसलिए 130 को 130.0 लिखा. ओके, सो माइनस 0 में नहीं, 7 माइनस पॉसिबल नहीं होता. सो 3 में से यहाँ पे 1 आता और फिर यहाँ पे आता 10 हो जाता. 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 9 रहता है. 9 माइनस 4 कितना है? 5 है. ओके, यहाँ पे 2 रहता 12, 125.3. सो 125.3 is the mean value. What is the value? Mean value. Okay, 130 में से 4.7 माइनस करें. 10 माइनस 7 3, 9 रहता, 9 माइनस 4 5 एंड 2 रहता 12, 125.3. दिस इज द मीन वैल्यू. ओके, राइट. मीन होने के बाद अपन अभी नेक्स्ट क्या करना, अपन xi में से x बार माइनस करना है. ओके, अब नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे चलेंगे अपन. राइट, अब देखो एक बार, ये होगा ना 130. राइट, ये दूसरा स्लाइड है, दूसरा बोर्ड है ये. राइट, ओके, राइट. xi माइनस x बार, xi मीन्स ये वैल्यूज. xi की वैल्यू क्या है? 100 माइनस x बार. व्हाट इज द x बार वैल्यू? 125.3 है. ओके, ये लाइन निकाल देंगे, ये लाइन बाजू में लिखेंगे. ओके, राइट. थोड़ा बड़ा कंफ्यूज हो रहा, थोड़ा कंफ्यूज बोले तो प्लेस कम है ना. राइट, चलो ये वैल्यूज लिखने के बाद उसका ब्रैकेट ले लेंगे. ओके, राइट. सो इक्वल्स टू वैल्यू 100 माइनस 125. सो 125.3 माइनस 100 कितना होता? 25.3. ओके, सो 25.3. क्लियर? राइट, 25.3. ओके, नेक्स्ट वन 110. ओके, 110 माइनस 125.3. ओके, कितना हो रहा? यहाँ पे 110 लिखो, कितना हो रहा? 15 हो रहा, 15.3. क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 120 है. 120 मीन्स 5.3. 120 माइनस 125.3 मीन्स 5.3. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है? 130 माइनस 125.3. ओके, 130 रहता है यहाँ पे, 130.3. और यहाँ पे क्या कौन सा माइनस करना? 125. ये 0, 125.3. क्लियर? 130 में से 125.3. 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 9 रहता है. 9 माइनस 5 4, 2 रहता 0, 4.7. ओके, 4.7 होगा. नेक्स्ट 140 माइनस 125.3 इक्वल्स टू 14.7 होता. क्लियर? नेक्स्ट 150 माइनस 125.3 कितने हो रहा? 24.7. राइट, नंबर्स दिख रहा कि बोर्ड पे? ओके, थोड़ा जूम करके देखिए ले यार. राइट, 24.7. ओके, दिख रहा. अब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम से एक ही स्लाइड में, एक बोर्ड में एक ही प्रॉब्लम बोल तो कंफ्यूजन नहीं होता. नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन और क्लियर करेंगे. ओके, राइट. सो fi इंटू xi माइनस एक्स बार. fi लाइन ये है और xi माइनस एक्स बार लाइन ये है. fi इंटू मॉड xi माइनस एक्स बार 9 इंटू 25.3. ओके, 9 इंटू 25.3. 25.3 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27. ओके, 2 कैरी. 9 5 ज़ा 45. 45 प्लस 2 47. 4 कैरी. 9 2 ज़ा 30, सॉरी 9 2 ज़ा 18. 18 प्लस 4 22. क्लियर? सी वंस अगेन, केयरफुल सिंप्लीफिकेशन, वेरी केयरफुल रहना.
एक पॉइंट इधर उधर गया, नंबर इधर उधर गया, पूरा प्रॉब्लम आंसर चले जाता। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, ओके 4 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, क्लियर। नेक्स्ट 9 इंटू 25.3 कंप्लीट होगा, 13 इंटू 50.3 15.3 15.3 इंटू 13, ओके 13 3 जा 39, 3 कैरी, ओके 13 5 जा 65 65 प्लस 3 68, ओके 6 कैरी। नेक्स्ट 13 1 जा 13 प्लस 6 19, क्लियर, ओके। नेक्स्ट 13 इंटू ये होगा, अब नेक्स्ट देखो 26 इंटू 5.3 26 इंटू 5.3, ओके 5.3 इंटू 26, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, 6 3 जा 18 6 3 जा 18 6 5 जा 30 प्लस 1 31, ओके 2 3 जा 6 2 5 जा 10, क्लियर। 8 7 3 1, ओके 1 पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, 1 नंबर छोड़ दो, मीन्स 137.8, क्लियर 137.8, ओके। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वन 137.8 होगा। नेक्स्ट क्या है 30 इंटू 4.7, ओके 30 इंटू 4.7 4.7 इंटू 30, ओके 0 तो कैसे भी रहता ना, वो 0 छोड़ दो, ओके 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12 12 प्लस 2 14, ओके 141.0, क्लियर 141.0, ओके। नेक्स्ट 12 इंटू 14.7 12 इंटू 14.7, ओके 14 7 जा 84, ओके 84 8 कैरी, 12 4 जा 7 जा 84, 12 4 जा 48 48 प्लस 8 56, ओके 5 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 5 12 प्लस 5 17 176.4, क्लियर। नेक्स्ट 10 इंटू 24.7 मीन्स डायरेक्ट क्लियर 247.0, ओके इसका समेशन करना है अपन, राइट। किसका थोड़ा ये लाइन इधर ले ले तो मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार वैल्यू, ओके इक्वल्स टू, चलो आफ्टर पॉइंट के बाद क्या है, नंबर ऐड करेंगे अपन 4 प्लस 8 12 12 प्लस 9 12 प्लस 9 21 21 प्लस 7 28, ओके सो 2 कैरी, क्लियर 28 इसे ना, 4 प्लस 8 12 12 प्लस 9 21 28, ओके 2 कैरी, 2 प्लस 7 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 1 16 16 प्लस 7 23 23 प्लस 8 31 31 प्लस 7 38, फिर और एक बार 8 आया 38 3 कैरी, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 4 7 7 प्लस 7 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 3 21 21 प्लस 9 30 30 प्लस 2 32, ओके 3 कैरी अगेन, सही है ना, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 7 14 18 21 30 32, राइट। अगेन 3 कैरी, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 7 8 9 10 11, सो 1128.8, क्लियर 1128.8 आ गया, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, अभी ये माइनस ये पूरा निकाल के ओरिजिनल सॉल्यूशन करेंगे अपन, ओके राइट। थोड़ा कैमरा इधर ले लेंगे अपन, चल अभी कितना है अपने को, सिग्मा कैपिटल एन वैल्यू कितना है अपने को, वी हैव द कैपिटल एन वैल्यू, कैपिटल एन वैल्यू कितना, ये इसको क्या लेते हैं अपन, कैपिटल एन लेते हैं ना सिग्मा एफ आई को, सो कैपिटल एन वैल्यू 100 है, ओके सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार वैल्यू कितना है अपने को, एक्स आई माइनस एक्स बार वैल्यू 1128.8 है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना, मीन डिविएशन, द फाइनल आंसर मीन डिविएशन इज a प्लस 1 by कैपिटल n इंटू सिग्मा एफ आई इंटू
xi माइनस एक्स बार। क्लियर? ओके, ये मेन फार्मूला है, मेन डिविएशन का फार्मूला सेम रहता, चेंज नहीं होता। ओके, 1/n, व्हाट इज n वैल्यू? 100। ओके, एंड इनटू सिग्मा, कितने आया आंसर अपने को? 1128.8। क्लियर? सो 100 से डिवाइड कर रहे अपन, 1128.8 बाई 100। सो इंटू 100 करें तो पॉइंट के राइट साइड से नंबर इधर आ जाता, फिर डिवाइड रहा तो इधर के पॉइंट के इधर साइड के दो नंबर उधर चले जाते, 20 से ना, सो पॉइंट के इस तरफ के दो नंबर उधर चले जाते, मींस 11 के बाद 0.288। सी डिवाइड, अभी सपोज ऐसा है समझो, 1128.8 इंटू 100 है समझो, यहाँ पे और एक नंबर है समझो, राइट? पॉइंट इंटू 100 है, पॉइंट के बाद दो नंबर्स इधर आ जाते, मींस 112881। क्लियर? ये दो नंबर सीधे आगे, उधर कुछ भी नहीं है बोले तो 0, राइट? वही डिवाइड है समझो, 0.8 डिवाइड 100, डिवाइड रहा तो क्या होता है? डिवाइड 100 मीन्स लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट्स राइट साइड में चले जाते, सो 2 पॉइंट्स उधर चले गए तो यहाँ पे पॉइंट होता, 11.288। सो अप्रॉक्सीमेटली इसको कितने लिख सकते हैं अपन? 29। यहाँ पे क्लोज करना चाह रहे हैं ना, इसके सामने 8 है, यहाँ पे 5 नंबर या 5 से ज्यादा नंबर रहा तो ये निकाल के इसके सामने एक नंबर ऐड कर देते। क्लियर? 11.29। दिस इज द मीन डिविएशन अबाउट द मीन। ओके, मीन से मीन डिविएशन फाइंड आउट करने का प्रोसेस है ये। सो आंसर कितने आया अपने को? 11.29 आया। सो थोड़ा वो टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो टेबल छोड़ के रिमेनिंग एक बार नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे अपन, वो टेबल थोड़ा एक्सटेंड करके सिंपल वे में, तो थोड़ा बोर्ड में एक ही प्रॉब्लम आया जैसा अपन सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, राइट? सो मीन डिविएशन अबाउट मीन 2 प्रॉब्लम्स होगा, ऑब्जर्वेशंस दिए जब कैसे फाइंड आउट करना, क्लास इंटरवल दिए जब कैसे फाइंड आउट करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी है क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स नेक्स्ट और 2 प्रॉब्लम्स है, वो 2 प्रॉब्लम्स भी सेम है ऐसी है, वो क्या करेंगे अपन थोड़ा स्पेस लेके करेंगे, यहाँ पे थोड़ा प्लेस छोटा हो गया था, थोड़ा कंजेस्ट करके लिख दिया मैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में और क्लियरली एक्सप्लेन करने को कोशिश करेंगे, राइट? सो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा तो, और आप लोग लाइक करें तो मेरे को और इंटरेस्ट आता, लाइक्स बढ़े तो मेरे को क्या होता है? एनर्जी आता, और क्लियरली कुछ भी स्मॉल डाउट भी आप लोगों को नया आया जैसा और भी एक्सप्लेन करने को मेरे को एनर्जी मिलता। ओके, सो प्लीज लाइक द क्लास, शेयर एंड चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।